شروع کریں سر. لائیو بھی گیا ہے سر, 1-2 میں لائیو بھی ہو گیا ہے. نہیں اتنی جلدی نہیں کرو. ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, چل رہا ہے. ایک تھا مسئلہ نہیں تھا. پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیونکہ کل سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی تھی. اس کے رد عمل میں وزیر اطلاعات گلگت بلتستان فتح اللہ خان اس وقت اپنے آفس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام صحافی بھائیوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا اور پی ٹی آئی کی تنظیم کا دونوں کا موقف دینے کے لیے میں آپ کے سامنے عوام کے سامنے حاضر ہوں. گزشتہ کل ایکس چیف منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس, دھمکی آمیز پریس کانفرنس کو سن کے اس کا ریبرٹل دینا لازمی تھا ہمارے لیے. انہوں نے بہت سارے ایشوز کو اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں رکھ سکے, مکمل طور پہ غم و غصے کی حالت میں دھمکی آمیز انداز میں انہوں نے خطاب کیا پورا کوئی 1 گھنٹے کا. اس میں نمبر 1 حافظ صاحب نے لانگ مارچ کے حوالے سے کہا کہ جی یہ لانگ مارچ آرمی کے خلاف, جی ایچ کیو کے خلاف اور آرمی چیف کے خلاف ایک لانگ مارچ ہے. اس کو میں آج کلیئر کر دوں کہ خان صاحب کے کئی بیانیے میڈیا کے سامنے آ چکے ہیں کہ جو ملک کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اسے آرمی چیف لگنا چاہیے. وہ نیریٹو تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا عوام کے سامنے آ چکا ہے. اب یہ لانگ مارچ ہو کیوں رہی ہے؟ یہ اس پی ڈی ایم کی جو حکومت جو اللیگل طریقے سے مسلط ہوئی ہے اس کو قبل از وقت الیکشن کے لیے, کیونکہ اس وقت وہ عوام کا مینڈیٹ لے کے پرائم منسٹر نہیں بیٹھے, ان کے جو وزراء ہیں وہ حکومت ان کو عوام نے نہیں دی تھی, حکومت تو تحریک انصاف کو دی تھی. بدقسمتی سے اندر کی باہر کی تمام قوتیں مل کے رجیم چینج ہو کے ان کی حکومت مسلط ہوئی, جس کے اوپر آج سے کوئی 8 مہینہ پہلے خان صاحب نے اپنا یہ نیریٹو لوگوں کے سامنے بلڈ کیا کہ ملک میں اس سے پہلے بھی حکومتیں اس طرح کی گرائی گئی ہیں, اور اس پہ جو رد عمل ہے عوام کا اس سے قبل نہیں آیا تھا. اس دفعہ عوام کا رد عمل بڑا واضح کلیئر ہے کہ جی کب تک ہم غلام قوم بن کے لوگوں کی خواہشات کے اوپر حکومتیں ہم تسلیم کرتے رہیں. اس دفعہ پاکستان کی یوتھ, لکھی پڑھی عوام, وہ خود بغیر اپنے کسی حلقے کے نمائندے کے خود نکل آئے. یہ ایک محب وطن ہونے کا ایک ثبوت دیا. آج تحریک انصاف بھلے گلگت بلتستان ہو یا پاکستان ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کا مقصد ہے. اور جو اپوزیشن کی پی ڈی ایم جماعت جو ہے وہ اس کو نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی یہ پاک فوج کے خلاف ہے یا پھر جی ایچ کیو کے خلاف ہے, کسی اسپیسیفک شخصیت کے خلاف ہے. یہ بالکل نیریٹو ان کا سوشل میڈیا میں چلا ہی نہیں ہے, یہ فلاپ ہو چکا ہے. تحریک انصاف کا اولین جو نیریٹو ہے, بیانیہ ہے,
कि पाकिस्तान के तमाम फैसले, खा वो अंदरूनी फैसले हों, बैरूनी फैसले हों, ये मुल्क के अंदर होने चाहिए। और मुल्क की जो इलेक्टेड जो एक बॉडी होती है, नुमाइंदे होते हैं, वो खुद करें। तो इसको सामने रख के इम्पोर्टेड हुकूमत की जो एक हुकूमत जो बनी हुई है, उससे अवाम को निजात दिलाने के लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, इस लॉन्ग मार्च में साबका चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जी जितने मिनिस्टर साहिबान को उन्होंने मुखातिब होके कहा कि ये सरकारी गाड़ियों में अगर गए तो ये कल को भुगतेंगे। हम कई सारे मिनिस्टरों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अक्सरियत की मैं बात करता हूं, क्योंकि जमहूरियत में हमेशा अक्सरियत की बात होती है। मैंने अपने साथी, दोस्त, अहबाब मिनिस्टर साहिबान को गिलगित शहर में, स्कर्दू शहर में, चिलास शहर में बगैर झंडे के देखा है। अक्सर झंडे हम कम ही लगाते हैं। और ये आज मैं क्लियर कर दूं कि मैंने गिलगित शहर में बगैर झंडे के मैं 2 साल मैंने गुजारे। इंशाल्लाह 24 तारीख को जो लॉन्ग मार्च होगी, अपना जो झंडे का जो स्टैंड है उसको थोड़ा सा बड़ा करवाने के लिए बताया भी है, थोड़ा ऊंचा करके पाकिस्तान का झंडा लगा के, और जो नंबर प्लेट है गिलगित 1 उसको भी थोड़ी सी छोटी लाइटें लगा के, ताकि दूर से नजर आ जाए सरकारी नंबर प्लेट और पाकिस्तान का झंडा। इसलिए पाकिस्तान का झंडा थोड़ा अलम बुलंद करके जाएंगे कि हम पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। मैं तो उस लीडर का फॉलोअर हूं जिसको गोली लगी, जिसको बदकिस्मती से इस मुल्क में साबित करना पड़ा अपने उन जख्मों को, और जिसका पेट में दर्द होता है, जिसको बुखार होता है, वो आज लंदन में बैठे हैं। कल साबका चीफ मिनिस्टर का जो अंदाज बयां था कि वो जिसके फॉलोअर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, वो बड़े दिलेर, वो समझ रहे थे कि बड़ी दिलेर शख्सियत है। अरे भाई, वो चोर है, डाकू है, निकम्मा है, वो मुल्क छोड़ के चला गया है, वो अपना इलाज इस मुल्क में नहीं करवा सकता। मतलब उसके अंदर थोड़ी हया गैरत होती तो इमरान खान साहब की तरह इस मुल्क के अंदर डटे रहते, गोली से ना डरते। कहते हैं कि हिम्मत थी तो सीने पे गोली खाते। सीने पे गोली लगी, टांग पे लगी, गोली होती है, लग गई। अब उसका नतीजा भी आपका ही जो लंदन में बैठा उस बंदे ने डिस्क्लोज कर दिया है कि इसकी साजिश कहां पे हुई थी, और इसको और अरशद शरीफ को क्यों मारने की कोशिश की गई थी, वो तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा। ये 70s का दौर नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर को, एक बड़ी शख्सियत को आप मर्डर करें, आप मार दें, तो उसके बाद उनके ही औलाद गवर्नमेंट में आ जाएं और अपनी माँ और अपने बाप की भी यहां तहकीक ना हो सके। ये अभी सोशल मीडिया का दौर है। इंशाअल्लाह ताला ये जो खान साहब के ऊपर जिन्होंने हमला किया है वो बेनकाब होंगे, सामने आ जाएंगे। फिर पैराशूट से इक्तदार संभालने के बाद वो एक दूसरों को चीर फाड़ने की बातें कर रहे थे। आज हुकूमत में होते हुए 26 किलोमीटर की हुकूमत में वो इस परेशानी के आलम में है कि आए रोज इमरान खान साहब का ग्राफ भी बढ़ता है, और अगला इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ का एक कंफर्म उनको महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऊट पटांग बातें यहां पे कर रहे हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों के जितने हमने लीडर्स देखे PMLN के, आप साफी, आप मुझे इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ 2-4 लीडरों के नाम दें जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए पागल पन्ने की हद तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस तरह हमारे भाई हाफिज हफीजुर रहमान साहब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमसे कहते हैं कि ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं।
کل کے پریس کانفرنس کے بعد میں کہتا ہوں گلگت بلتستان کا سب سے بڑا شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار حافظ صاحب نکلے. لیڈر چوری کے کیس میں باہر ہیں اور یہاں پہ اس لیڈر کی جس طرح اس نے اس کو ایک ولن بنا کے پیش کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ حیرت ہے. پھر انہوں نے ڈسکس کیا توشہ خانہ کا. یہ بات کلیئر ہے کہ اس سے پہلے توشہ خانہ سے بھلے نواز شریف صاحب ہوں، بھلے یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، پرویز اشرف صاحب ہوں، کاف لیگ کے دور میں جو پرائم منسٹرز تھے 2-3، ان سب کا ریکارڈ توشہ خانے سے پبلک ہوا ہے، میڈیا نے پبلک کیا ہے. کس نے کتنی مالیت کی چیزیں لی ہیں، اس وقت کتنا پرسنٹ پیسہ جمع کروا کے وہ توشہ خانہ سے چیز اٹھانی تھی، وہ 20% تھا. یہ بھی کلیئر ایک چیز ہے. خان صاحب نے جب یہ گڑی لی تو 20% سے بڑھا کے 50% اپنے ہی دور میں کیا، اور یہ ثابت بھی کیا کہ ان پیسوں سے انہوں نے سڑک بنوائی ہے. یہ مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ واضح ہے. تو توشہ خانہ کے اس کیس کو لے کے جس طرح میڈیا ٹرائل ہوا، وہ میڈیا ٹرائل بھی ان کا فلاپ ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے. واحد پاکستان کے ایماندار لیڈر ہیں جن کی ایک پرچی، ایک ان کی منی ٹریل چھپی بھی نہیں ہے. آج ہم یہ حافظ صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کے آقاؤں نے، آپ کے بڑوں نے جو توشہ خانوں سے جو چوریاں کی ہیں، جو انہوں نے جائیدادیں ملک میں اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، آج بھی وقت ہے کہ آپ ایک کا بھی کاغذ پیش کر دیں. آپ نہیں کر سکے. اس لیے پاکستان کی اپیکس کورٹ نے ان کو بددیانت قرار دیا، عمران خان صاحب کو دیانتدار، صادق اور امین قرار دیا. اور پھر ایک اور چیز میں ریمائنڈ کروا دوں عوام کو، جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اس دوران انہوں نے مجھے کیوں نکالا کہ جگہ جگہ تقاریر وہ کر رہے تھے، تو دو آدمی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداری کی میں بات کر رہا ہوں. ایک اس وقت کے چودھری صاحب جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے، ایک موجودہ اس وقت کے موجودہ تھے، آج سابقہ چیف منسٹر ہیں حافظ صاحب. ان دونوں نے ریاست کے خلاف بات کی تھی، آپ سب کو پتا ہے. فوج کے خلاف انہوں نے بات کی تھی اور بڑے عجیب و غریب الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو، یہ نہیں چلے گا. پاکستان کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا جھنڈا تقریباً ہر جلسے میں برابر ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے ڈائریکٹیوز ہیں اپنے کارکنوں کے لیے کہ جہاں عمران خان صاحب کی پارٹی کا جھنڈا ہوگا وہاں پاکستان کا بھی جھنڈا لے کے آ جائے. تو پاکستان کی جو لکھی پڑی یوتھ ہے، جو محب وطن پاکستانی ہے، یہ سوشل میڈیا میں خاص کر کے ٹویٹر کا ٹرینڈ آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹویٹر کا ٹرینڈ ہی آپ کو بتاتا ہے کہ تحریک انصاف کا محب وطن پاکستانی اس ملک کو بچانے کی تحریک کو لے کے چل رہا ہے. یہ ملک کو لوٹنے والے لوگوں کو نکال کے باہر پھینکنا ہے اور اس ملک کو ایماندار لوگوں کو رکھنا ہے. یہ پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی پالیسی ہے. اور پھر وہ انرجی کی انہوں نے بات کی کہ 2 سالوں میں انہوں نے کون سے بڑے پروجیکٹس لگائے. کبھی انہوں نے سولر کی بات کی، کبھی انہوں نے ڈوئل فیول کی بات کی. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ تو مسلسل 5 سال آپ اس گلگت بلتستان کے چیف منسٹر رہے، 3 سال آپ کو آپ کی وفاق میں حکومت اور یہاں آپ کی حکومت کا آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا تھا. آپ نے کتنے ایک پروجیکٹس یہاں پہ انسٹال کرنے کے لیے پیش رفت کی ہے. 5 سال تو وہ تھے اور 2 سال ہمارے. 7 سال میں اگر گلگت شہر میں، اسکردو شہر میں، چلاس میں، ہنزا نگر میں اگر کوئی 5 میگا واٹ کا اضافہ نہیں ہوا ہے تو یہ 2 سال والے سے پوچھنا مناسب نہیں ہے، یہ ان 5 سال والوں سے پوچھنا ہے. ہم بات ایمانداری کی کریں گے، جو سوال عوام نے اس کو وہ کرنا. پھر جتنے اس وقت پروجیکٹس، یہ غزر چترال جو روڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے دعویٰ کیا یہ
کس کے دور میں اس کا ٹینڈر ہوا ہے, کس کے دور میں اس کا کام شروع ہوا ہے, اور انشاءاللہ کس کے دور میں یہ ختم ہوگا, یہ مزید ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کا مطلب پروجیکٹ ہے, اور ہمارے ہی دور میں انشاءاللہ اس کی کمپلیشن ہوگی. آٹے کے حوالے سے, گندم کے حوالے سے اس وقت گلگت بلتستان کے گاؤں گاؤں گلی گلی پریشانیاں ہیں. بحیثیت صوبائی حکومت کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جس کے پاس سبسڈی دینے کا اختیار ہے, جس کے پاس سبسڈی کاٹنے کا اختیار ہے, آپ بجائے یہاں پہ بلند بانگ دعوے کریں, آپ پی ٹی آئی کے منسٹروں کو کہیں کہ اپنی سرکاری گاڑیاں نہ لے کے جاؤ, اور ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ سرکاری ملازمین آپ لوگوں کی انوالومنٹ کے بعد میں آپ کو دیکھوں گا اپنی حکومت آنے کے بعد, تو آپ کسی کو نہیں دیکھ سکتے. آپ اس سے پہلے بھی آپ کے 5 سال کا دور عوام نے دیکھا ہے, انہی سرکاری آفیسران نے دیکھا ہے. سرکاری آفیسران ریاست کے ملازم ہوتے ہیں, آپ کے نہیں ہیں, میرے نہیں ہیں, یہ آزاد ہیں, یہ اپنے نظام کو ٹھیک سے چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو آپ ان کو دھمکی نہیں دے سکتے. ہماری آج حکومت ہے, انشاءاللہ یقین ہے کہ اگلی حکومت بھی ہماری ہی ہوگی. تو آپ بجائے یہاں دعوے کریں, غصہ دکھائیں, تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جو وفاق میں, اس کے غم و غصے میں یہاں غصہ دکھانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں اسلام آباد, جا کے جو گندم کی کٹوتی ہوئی ہے, آپ نے تو سوشل میڈیا میں آپ کا آج بھی وہ سٹیٹمنٹ ہے, اخبارات آپ کلیئر کر کے دیکھیں کہ کیا حفیظ الرحمان صاحب نے مہینہ پہلے یہ دعویٰ اخبار میں نہیں کیا تھا کہ یہ جو گندم کی بحالی ہوئی یہ ہم نے کروائی ہے. یہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے, اور بدقسمتی سے ملک کی طرح ان کو یہاں بھی وہ انگریزی کا جو کاغذ ہے, صحیفہ, وہ ٹھیک سے وہ پڑھتے نہیں ہیں. وہاں جو کنفلکٹ آیا وہ تھا ہی نہیں, اس میں بڑی کنڈیشنز تھی, وہ ان کو سمجھ نہیں آئی. تو گندم گلگت بلتستان کا جو کوٹا ہے وہ وفاق کی طرف سے آج کے دن بھی 16 لاکھ بوری والا ایشو حل نہیں ہوا ہے. ہماری ایز اٹ از جو ڈیڈکشن ہوئی ہے اس حساب سے گلگت بلتستان کو گندم آ رہی ہے. اور پھر جی انہوں نے کہا کہ وہ جو 3 ارب روپیہ پڑا تھا کشمیر کونسل کے پاس, وہ ہم نے ریلیز کروایا ہے. آپ نے ریلیز نہیں کروایا ہے. گلگت بلتستان کی عوام نے وفاق سے ڈیمانڈ کی تھی کہ یہاں کم از کم 10 سے 12 ارب روپے کا جو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز میں, پبلک سیکٹرز میں لوگوں کی زمینیں, گھر جانے, یہ جو فلڈ میں جو نقصان ہوا, اس میں جی پی ڈی ایم اے نے اور ہوم سیکرٹری نے, چیف سیکرٹری صاحب نے, ان سب نے صوبائی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو اور قمر زمان کائرہ صاحب کو ایک تخمینہ بتایا تھا. بجائے وفاق سے اور صوبوں کی طرف ایک اچھا خاصا گرانٹ دینے کے, وہ پیسہ ہماری طرف ڈائیورٹ کر کے تو لوگوں کے سامنے اعداد و شمار کو گورکھ دندے کے طور پہ پیش کرنا, یہ حافظ صاحب کا شروع سے وتیرہ رہا ہے. پھر آخر میں کیونکہ لمبی ہو گئی ہے میری بات, انہوں نے کہا جی یہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں, آپس میں گروپ بندیاں ہیں, ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جی کون کتنے لوگوں کو لے کے آ جائے گا. یہ آج واضح کر دوں کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این نہیں ہے, یہ تحریک انصاف ہے جس میں حقیقی معنوں میں جمہوریت ہے. یہاں ہمارے ایک کارکن کے پاس بھی کھلا سوشل میڈیا کے اندر بات کرنے کا حق ہے. یہی تو خان صاحب نے شعور دیا ہے تحریک انصاف کے. وہ جب بھی آئی ایس ایف کے اور یوتھ کے کنونشن میں بیٹھتا ہے تو لوگوں کو مخاطب کر کے تم میرے لیڈرز ہو کے بات کرتا ہے. شروع اس بات سے وہ کرتے ہیں کہ لیڈر پیدا کر رہی ہے. یہ ایک ایسی نرسری ہے, کسی زمانے میں جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک نرسری ہوتی تھی پاکستان میں, بڑے بڑے لیڈرز اس نرسری سے نکل کے پاکستان میں حکمرانیاں کی ہیں. آج تحریک انصاف وہ سیاسی جماعت ہے جو ایک خوبصورت نرسری ہے, ایک پروڈکٹ پیدا کر کے یونیورسٹیز سے, اسکولوں سے پھر سیاست کے سامنے لے کے آتی ہے. وہ پھر ملک کو لیڈ کریں گے. تو ہم بحیثیت حکومت اور بحیثیت پارٹی
भले हमारे 100 इश्यूज आपस में ये एक हुस्न है कि हम खुल के अपने लीडर के हवाले से, मेरे कई पार्टी के कारकुन मुझसे नाला हैं, मैं शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर नहीं कर सका हूं, तो उनकी वो एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर नाराज होना, उनका हाथ मेरा गरेबान, वो 100% उनका हक है। तो तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में मजबूत है, एक ही पेज पे है। वक्ती के इख्तलाफात ये हमेशा के लिए नहीं, ये बादल जट जाते हैं, और कोई इस खाम ख्याली में न रहे कि जी आपस में कोई इश्यूज हैं तो आप खुश हो जाएंगे कि तहरीक इंसाफ में बंटवारा होगा। इंशाल्लाह मजबूत तरीके से गिलगित बल्तिस्तान से जो मिनिस्टर साहिबान हैं, कोऑर्डिनेटर साहिबान हैं, जिसके पास सरकारी गाड़ी है, वो अपनी सरकारी गाड़ी पाकिस्तान की सालमियत को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, झंडा थोड़ा ऊंचा करके, नंबर प्लेट पे लाइटें करके इंशाल्लाह जाएगा। सरकारी मुलाजमीन ये पटवारियों की पार्टी नहीं है कि हम पटवारियों को बुला के जलसे करें। ये तो मैंने उस दिन अपने कन्वेंशन में कहा था कि आए ये हजरात गिलगित शहर में ये कोई एक कन्वेंशन करें, आज अगर दम खम है घुटनों में तो करें। 2 साल गुजरने के बाद कोई भी सियासी जमात हुकूमत में रह के इतने कन्वेंशन नहीं कर सकती। मैंने तो 2 दिन के नोटिस पे किया था। अगर मैं पूरी तैयारी के साथ करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ का वर्कर लख दफा मुझसे नाराज हो, लेकिन गैरत के मुकाम पे इमरान खान के लिए वो खड़ा रहेगा। थैंक यू। एक सवाल है मिस्टर साहब, ये गोवा जवाब शिकवा अपोजिशन हुकूमत के दरमियान में कब से चलता रहा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो जवाब देते हैं, वो करते हैं तो आप जवाब देते हैं। यहाँ पर इशूज़ है, पीने का साफ पानी का एक इशू है, बिजली का इशू है, आटे का इशू है। इस हवाले से ना अपोजिशन कोई एहतजाज कर रही है, ना हुकूमत कोई एहतजाज कर रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, हमारे जो 10 अजला हैं, आज मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको एक बात बता दूं। आप सारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं गिलगित शहर के, इस बात को आप थोड़ा सा ले लें, और मैं अगर गलत हूं तो उस हिसाब से आप तस्हीह भी मेरी कर लें। पिछले 20 सालों से गिलगित शहर की आबादी 4 गुना बढ़ गई। 9 अजला के लोगों की माइग्रेशन गिलगित शहर में हुई। अब जो इंस्टॉलेशन है हमारे पास, इंस्टॉलेशन मींस बिजली और पानी कारगा से आता है। यहाँ तंजीमों ने दरिया से लिफ्ट इरिगेशन का एक अपनी मदद आपके तहत, एक फार्मूले के तहत वो पानी उनको मिल रहा है। तो आज से 30-40 साल पहले जो वाटर सप्लाई की जो स्कीम, पाइप, जो सोर्स है या रिसोर्स है, और इस तरफ आबादी उसकी 4 गुना ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से एहतजाज का जो सिलसिला है वो गिलगित शहर में है। और जितने एहतजाज के अंदर मैं गया हूं, पिछले साल भी और इस साल भी जो थोड़े बहुत हुए हैं, उसमें या मैं जाता हूं या हमारी पार्टी से कोई ना कोई एक जिम्मेदार, कोऑर्डिनेटर, पीटीआई का कोई भी जिम्मेदार जब भी जाता है, तो वहां एक चीज देखने को मिलती है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उन बेचारों की अक्सरियत की बाहर डिस्ट्रिक्ट से है, इसलिए कि यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, मुकीम हैं, पुश्तनी बाशिंदे हैं, उनको आटे का निज़ाम तो ठीक मिल रहा है। लेकिन जो बाहर से आए हुए बंदे ने, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा जगलोट को छोड़ के गिलगित आया है, मैं खुद आया हूँ, क्या मैंने जगलोट से अपना डिडक्शन करवाया है, उसको इधर शिफ्ट किया है? आंसर इज नो। इसी तरह 1.5 लाख के करीब गिलगित शहर में 1.5 लाख बाहर से लोग आए हैं, उन 1.5 लाख ने अपने रिसोर्सेज बाहर से शिफ्ट नहीं किए। आपकी बात दुरुस्त है कि बिजली, पानी और आटा, ये अब हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि हम दावा कर सकें कि ना मैंने इससे पहले दावा किया है, ना आज मैं दावा करता हूं। अलबत्ता यह है कि हेजल पावर प्रोजेक्ट जो रन ऑफ द रिवर में हिस्ट्री में पहली दफा बनने जा रहा है, वो 20 मेगावाट का था। उसको डिपार्टमेंट ने और कंसल्टेंट ने मिल के उसको 40 मेगावाट उसकी अपग्रेड करने के लिए, आपको स्टोरी का सारा पता है, वो अगर अल्लाह करे 40 मेगावाट हो जाता है, और इस साल उसने बाकायदा तौर पे उसके ऊपर काम शुरू हो जाना है, तो देर सवेर बहुत सारी चीज़ों में हो जाती हैं और हो भी गई हैं। अब देखें, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को जो हुई, वो 1 साल हमें मिला
वफाकी हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप का, जबकि साबका दोनों गवर्नमेंट्स को 3-3 साल मिले। हमारी बेड लक है, हमारी आवाम की शायद बेड लक है कि हम उस बदकिस्मती के उसके अंदर आ गए। तो अब ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आज आपको मैं ये भी कहूँ, आप खुद जाएं, न्यूट्रल राय ले लें डिपार्टमेंट्स के पास जाके, क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, वफाक की भी 2 सियासी जमातों का असर है यहाँ पे। हमारे कायरा साहब का असर है और शहबाज शरीफ साहब का भी असर है। आप न्यूट्रल राय ले लें कि ये गिजर चतराल जो शंदूर रोड है, इसमें पीटीआई की जब पहली और दूसरे साल की हुकूमत थी तो एलोकेशन एडीपी में कितनी थी, पीएसडीपी में, और अभी इस दफा इनकी कितनी है, आपको क्लियर कट हो जाएगा। तो बदकिस्मती से पूरे मुल्क में सैलाब आया, सैलाब की वजह से इसी साल फर्स्ट जो क्वार्टर है उसका 3 अरब 38 करोड़ की यहाँ से डिमांड गई थी, बदले में 1 अरब 20 करोड़ रुपए गिलगित बल्तिस्तान को हुकूमत को मिला। फिर हमने ब्रिज फाइनेंसिंग किया, नॉन डेवलपमेंट वाला पैसा इधर शिफ्ट किया कि कल को वो आ जाए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नौयत के जो काम है, देखें यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान की नीयत को आप देख लें। हमने फिर कैबिनेट में डिसीजन किया कि जितने हमारे इस वक्त जो अनकरीब कंप्लीट होने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दौर के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके ऊपर फंडिंग ना होने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए, हमने ये डिसाइड किया कि 40-50 करोड़ रुपया उनके ऊपर, बाकी सारे काम अगर रुक भी जाते हैं तो इनको फंडिंग करें इनकी कंप्लीशन की तरफ। मिनिस्टर साहब, आपने आज सुबह से आपने कोशिश की, शुरू में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बातें की कि एक तो मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साथ ही साथ पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप आज सुबह से आप कोशिश कर रहे थे कि कोई मिनिस्टर आपके साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ सके, बिलखुसूस बल्तिस्तान से कोई मिनिस्टर आए या देगर रीजन से कोई मिनिस्टर आपके साथ आके अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर सके, चूँकि ये डोमेन आपका तो था। लेकिन ये जो कल थ्रेट हुआ था, तमाम मिनिस्टरों को हुआ था, आपकी पार्टी को हुआ था, तो क्यों ना वो मिनिस्टर साहिबान आपके साथ नहीं बैठे, या क्यों ना आपकी पार्टी के लोग सामने नहीं आए, क्या वजह बनी? मेहताब भाई, जब भी जिस वक्त भी खान साहब के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर नाजायज़ इस्तेमाल अल्फाज के होंगे तो हमारे अंदर शायद इतना कोई मादा नहीं है कि हम वो अल्फाज बर्दाश्त कर सकें। हर इंसान ने अपने हिस्से का दिया जलाना है, और एक मनसब मेरा जो इंफॉर्मेशन का है उसको लेके मेरा फरीज़ा है। बाकी किसी मिनिस्टर ने अगर जवाब नहीं दिया है तो मेरे ख्याल से उन्हीं से पूछ लो। मैं तो कहता हूँ कि ये जो कल हाफिज साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हर किसी को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। हमारे खा वो मिनिस्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, पार्टी के साबका ओहदेदार हैं, क्योंकि देखें आपस के, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, छोटे मोटे इश्यूज हम भाई हैं, हो जाएंगे, 2 भाइयों में भी हो जाता है। कल नाराज थे, आने वाले कल को एक टेबल पे बैठ जाएंगे, लेकिन जब ये पार्टी को, पार्टी की लीडरशिप को बंदा नाजायज तरीके से अगर हिट करेगा तो इंशाल्लाह जब तक जिंदा हैं तो उसका जवाब तो हमारी तरफ से। अच्छा सर, ये अबूरी सूबे के हवाले से आपके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। बिजली की जो सूरत हाल है वो पिछले दौर से बदतरीन होती जा रही है। पानी की अच्छी कैफियत नहीं है जिस पे आवाम कह सके कि कोई अच्छा सा चीज़ सामने आ चुका है। गंदम की जो सूरत हाल है वो बहरानी कैफियत अख्तियार कर गई है। और आपके 2 साल तो आपके गुजर गए हैं जो इम्पोर्टेंट 2 साल थे। आइंदा जो आपका मजीद जितना भी दौरानिया रहता है उसमें आप किन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देंगे और किस तरीके से इन इशूज़ को हल करेंगे? और दूसरा ये सवाल है सर, सिकरदू रोड का जो क्रेडिट था वो आपने लिया, आपने इफ्तिताह किया, तो कल गिजर रोड का या फिर जो आपका हेंजल का पावर प्रोजेक्ट है इसका क्रेडिट हफीजुर रहमान समेत या कोई भी लेता है तो क्या आपके उस इक़दाम को वैलिडिटी मिल सकता है? जो बिजली, पानी और आटा, ये जवाब तो आ गया है। उबूरी सूबा आपने उसके ऊपर ऐड किया है। देखें, उबूरी सूबे के हवाले से जब हमारी हुकूमत थी आज से 10 महीना पहले, सारे आप भाई अपडेट हैं कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन की तमाम जमातों को लेके जिस तरह से एक पेशरफ्त हुई, वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात थी,
पैरेलल एक ट्रांजिशनल प्लान की बात थी, जिसके ऊपर काफ़ी दिन लगा के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम एक नतीजे पे पहुंच गए थे। वो डॉक्यूमेंट भी आपके सामने बहुत सारों के साथ हैं। तो उसको बदकिस्मती से यही रिजीम चेंज ने मौका नहीं दिया। तो आज हम अपने दोनों बड़े भाइयों को कहते हैं कि जी वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, उठा लें, क्योंकि यूनानिमस असेंबली से पास हुई है। हमारे पास इस वक्त वो लंबे हाथ नहीं है कि हम वो पास नेशनल असेंबली से करवा सकें। हम यहाँ स्टक हैं सूबे के अंदर। तो ये दावा हर दौर में होता रहा है। बहरहाल सर, ये जो आपने कहा कि हमारा जो हफीज साहब का आपने हवाला दिया और कहा कि हमारा टारगेट जो है आर्मी नहीं है, ये जो लान हमारी हमारा जो है निशाना बाकी गवर्नमेंट है, तो आप नए इलेक्शन चाहते हैं, उनसे फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन आपने रास्ते जो अख्तियार किया वो पिंडी का किया हुआ है और आप हवाला दे रहे हैं इस्लामाबाद का, जबकि माजी में जितने भी रैलियाँ हुई, मार्च हुए हैं, वो सारे के सारे इस्लामाबाद में हुए। क्योंकि अगर आप पावर सेंटर से इस्लामाबाद को समझते हैं, पार्लियामेंट को समझते हैं, हुकूमत को समझते हैं, तो आपको इस्लामाबाद आना चाहिए। आप पिंडी जा रहे हैं, पावर सेंटर तो आप उधर समझ रहे हैं। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हुकूमत के खिलाफ नहीं, जीएसयू के इसका जवाब दे खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी इसका बात जवाब ये, दे। कल जो रैली आपकी जा रही है, सुनने में ये है कि आपका काफिला अलग जा रहा है, सीएम का काफिला अलग जा रहा है। दोनों का जवाब देता हूँ। देखें, ये जो बदनियानत लोग हैं, ये अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सब ने अमरीश पुरी की फिल्में देखी हैं और सुल्तान राई की देखी हैं, आप सब ने, मुझ समेत। नेता राजी के लिए ये अपने भाई को भी मारते हैं, घर वालों को भी मारते हैं। इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको चोरी का पैसा बचाना चाहिए। तो रावलपिंडी जो है वो पंजाब में आता है और पंजाब में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो जब भी मशकें होती हैं जंगी, तो एक प्लान बनाती है फौज, और वो जो सुप्रीम कमांडर कह लें या सरबराह कह लें, तो वो अपना पूरा प्लान बनाता है कि जी फिला जगह में एक पड़ाव होगा और उसके बाद अगला पड़ाव जो होगा वो फैसला कुन पड़ाव होगा। तो रावलपिंडी चूंकि तहरीक इंसाफ का हब भी है और दोनों हलकों से तहरीक इंसाफ जीती है, इस तरफ टेक्सला से ले जाके चक्री तक वो दोनों हलके तहरीक इंसाफ के हैं, इस तरफ मरी की तरफ जाएं वो तहरीक इंसाफ के पास हलके रहे हैं। तो ये जो सराउंडिंग्स के पोटोहार के 6-7 जो हलके हैं वो तहरीक इंसाफ के, वहाँ पे बड़ी ताकत बना के तब इस्लामाबाद का रुख होगा। प्लान होता है। अब रावलपिंडी से मुराद जो लिया जाता है तो वो तो फिर उनकी अपनी डेफिनेशन है। दूसरा, एक ही रैली होगी, ये भी गलत बयानिया बहरहाल करते हैं, अल्लाह हिदायत दे। मैं हूँ तो भी, कोई और है तो भी। तहरीक इंसाफ की एक ही रैली यहाँ से जाएगी, इसमें दो वो नहीं जाएंगी। हाँ, मुझे इम्तियाज साहब ने क्वेश्चन किया, वही सवाल आगे बढ़ाते हैं। सर, ये इख्तलाफात जो है खुल के सामने, इख्तलाफ जो है वो डिप्टी स्पीकर के इशू पे है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इशू पे है? सीएम सर बहुत सारे हैं। क्योंकि शमह लोन साहब मेरे ख्याल में आज पहुंच भी गए हैं, कोई आपके दरमियान में मीडिएटर कोई काम भी कर रहे हैं। इसमें कौन से बेसिक इशूज है पब्लिक वो सुनना है? देखें, इख्तलाफात, कौन सी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे इख्तलाफात ना हो? पहले भी मैंने कहा है कि इख्तलाफात ज़ात को लेके नहीं है, अपने ज़ाती मामलात को लेके नहीं है। मेजर बड़े इश्यूज हैं। मेरी ज़ात से अगर कोई बंदा पूछ ले कि आपके क्या इख्तलाफात हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा हेक्टिक पोजीशन मेरी है। बर्डन मेरे पास ज़्यादा है, कारकुनों का फ्लो हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ को ग्रूम करते करते एक मोहब्बतों का एक सिलसिला है तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ। अब मैं जब भी बात करूँगा तो मैं कारकुन की बात करूँगा। कारकुन मेरा जब मायूस होगा तो एक हद होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद तो फ्रस्ट्रेशन फिर आपस में ही इंसान वो डिस्क्लोज करता है। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि कोई किसी को गिराने के लिए लगा है, ऐसी चीज़ें नहीं है। मैं इस चीज़ को पहले भी कहा कि हम हकीकी मानों में
आज़ादाना और शफाफ तरीके से राय रखने का तहरीक इंसाफ के कारकुन के अंदर जज्बा मौजूद है। ऐसा नहीं कि मतलब PMLN की तरह वो कोई एक डिक्टेटरशिप, आपको खुद पता है वो घर के अंदर सियासत रही है, तो वहाँ पे उनसे कोई पूछ नहीं सकता है। पूछेंगे तो फिर पार्क होटल के सामने भी चिलास वालों की धुलाई होती है, सिटी हॉस्पिटल में भी बड़ी दफ़ा धुलाई होती रही है, सर ये तो वो धुलाई होती है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की थी मसले, तो उसमें जो डिमांड है बेसिकली वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट एपेक्स कोर्ट, उसमें लोकल जजों को ही लगनी चाहिए, उसमें लोकल चीफ जज आना चाहिए। तो इस करारदाद की मौजूदगी में जो मुतबैदा तौर पर मंजूर हुई थी, उसके अगेंस्ट में एक अपॉइंटमेंट अमल में आई। तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये जमहूरियत की पामाली नहीं है या कानून की पामाली नहीं है? इम्तियाज साहब, इसके साथ ये भी है सर, उसी दौरान क्योंकि आपकी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस किया, आईनी पिटीशन की, जिसमें लिखा हुआ है, सिंपल सादा अल्फाज में ये भी लिखा हुआ है कि चीफ जज की तकर्री को भी रोका जाए, उसके बावजूद तकर्री। इस पे बस मैं यही कहूँगा, समंदर को कोजे में बंद करता हूँ। जुडिशरी का इशू है, मुझे ज़्यादा लबकुशाई करनी नहीं चाहिए। वफाकी हुकूमत PDF के पास है, उन्होंने रिपोजिशन भेजी है, वहाँ से अप्रूवल आया है, जस्टिस साहब ने ज्वाइनिंग भी दे दी है। तो एक ज्वाइनिंग हो जाने के बाद तो फिर मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई भी कमेंट करना गैर मुनासिब है। वज़ीर शकील साहब कॉम्पिटेंट शख्सियत हैं, उनकी तारीफ पूरा गिलगित बल्तिस्तान करता है, इस इलाके का समझ। सर ये जो स्पीकर है, स्पीकर का जो मुआवजा हुआ था उस दौरान आप और अली अमीन गंडापुर गवाह की हैसियत से मैंने वो डिस्क्लोज किया, फिर क्या रिपीट करने की जरूरत है? मैंने कहा मैं गवाह हूँ उसका, आज भी रिपीटेडली कहता हूँ मैं बिल्कुल गवाह हूँ इसका। और दूसरा सर ये जो नेटको का ये है कि नेटको की अगर बसें गई तो MD नेटको के खिलाफ उन्होंने कहा ये गलत। देखें, मुकदमा दर्ज करवाएंगे के सर जी, पिछली दफ़ा जो नाटको की बसें गई हैं, नाटको के पास ट्रेल मौजूद है, वो सारा आप कोई भी जाके हाफिज साहब के भाई नाटको के बड़े अच्छे ठेकेदार भी रहे हैं, आपको सबको पता है, टायर वो देते थे इसके नाटको के, तो वो जाके चेक कर लेंगे पिछली दफ़ा जो रैली गई है नाटकों की कितनी बसें आई हैं और PTI ने उनको कितना पेमेंट किया। अच्छा सर, ये बताएंगे सर, दोनों तरफ से लड़ाई की ही बात हो रही है, कहीं से भी डेवलपमेंट का या कोई तरक्की का, मतलब PTI हो या PDM हो या हमारी मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, हुकूमत हो, तो हर तरफ से जो है वो दोनों तरफ से मतलब धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अवाम का कोई नहीं सोचता। इसका जवाब एक दे देता हूँ सर। अच्छा सर, बस वो सवाल पूरा आ गया। लड़ाई की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। आज मैं आपको अपने ही डिपार्टमेंट से, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, शाम तक आप सबको मेरे डिपार्टमेंट से व्हाट्सएप आएगा कि पिछले 2 सालों में हमारी कितनी स्कीमों के टेंडर हुए हैं, जो हमारे पास इश्तहारात मौजूद है, वो सबसे बड़ी गवाही देगा आपको कि डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई है, हो रही है नहीं हो रही है। अच्छा मिनिस्टर साहब, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एक्सरे निकाल रही है। नाकाबिल बयान हद तक जो है वो मसाइल से आप लोगों ने चश्मपोशी इख्तियार करी है। पानी का मसला नहीं है, लोगों को पानी मैसर नहीं है, आटा नहीं है, जिसका आपने खुद कहा कि भाई आटे लोगों के पास परेशानी में मुब्तला है। हर हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत देखी है। 3 साल के बाद उन्होंने, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म आ गए तो कहा कि भाई वफाक में इससे मदाखलत हो रही है। पीपल्स पार्टी ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। अब आप जो तब्दीली का नारा लगा के जो आप लोग आ गए थे, खुद चिनारबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CM साहब ने कहा कि मैं 1 साल में बल्दियाती इलेक्शन कराऊंगा। इलेक्शन नहीं हो गए, काबीना का फैसला था। उसके बाद गंदम का मसला का कहा कि 18 लाख के बोरी करवाया गया, वो नहीं हो गए। तो ये लोगों को कब तक झूठ का सहारा हर हुकूमत जो है वो दिलाते रहेगी? अगली दफा मैं वकार साहब को हल्का 2 से इलेक्शन लड़वाता हूँ तो ये इश्यूज हल कर लेंगे। थैंक यू सर। सर आप गारंटर तो है, लेकिन उस गारंटी को श्योर कैसे करेंगे? आप गारंटर तो है क्या?